Okay, so we'll proceed. So in this particular session, we have the certain agenda for us. So we can go through that. What do you understand by the key figures, and then what is its relationship with that of the supply chain management and the operators which we are utilizing the key figure. Okay, and afterwards we will come to the conclusion. So what is the key figure? So key figure, yeah, are essential entity for any business operation that corresponds between the vendor to customer and vice versa. Okay, in a simplified manner, key figures are the numerical inputs and the output key figures based on the numerical inputs and outputs figures based on the operations take place. Okay, so for the in order to have some examples, so here I have presented an illustration. So consider a boy who purchased a candy of 99 rupee. Shopkeeper incur a profit of 99 rupees per candy, and the accountability of the sales for that day for that day is 99 rupees. So what are the available data we have right now in our hand? So we have the number of candy, that is equals to 1. Then we have the cost of the candy, that is 99 rupees per unit, and the profit incurred is 99 INR. And what is the overall sales for the day? It's 99 INR. Now understood from this particular example? when Mm. we when we look for the profit, it requires the revenue, and so the revenue Mm. can be calculated by cost into quantity into price. Okay, Mm. so how many candy it has been you have sold? Only one. So what is the Mm. cost for that particular candy? It's 99 rupee. Okay, so Mm. the total profit they have incurred at that particular place is 99 in terms of revenue. In terms of Mm. revenue, okay. And what is the overall sales is 99 INR. Okay, Mm. likewise. Then, based on the previous illustrated data, the numerical digit referred as a figure. So, in that particular data, whatever the digits you are getting here, these are the numerical data, Mm. and that is referred as the figures. Okay, and then based on its applicability in the business transaction, it is referred as a key figures. Okay, so when it is applied in the business transaction process, so at that particular time we can refer it as a key figure. Key means the important, and figures means any sort of the calculation which has been presented or stored in the form of the figures, in the form of the numerical digits. Okay, Mm. likewise, then the key figures are the specification numerical or the digital entity to define the input and the output of the desired business transaction. Okay, Mm. so key figures are what? They are the specification for the numerical or the digital entity to define the input and the output of the desired business transaction. For example, you have COGS is the cost of goods sold. Okay, then you have the price per unit and the profit accounted, etc. Likewise, you have the different kind of the key figures. It may vary from business to business. Yeah, Yes, sir. yeah. Any query from your side? No, sir. Okay. So then what is the relativity of this key figure with the supply chain process? Okay, so as we know, in the supply chain is nothing but a chain of a series of events, operational events, which is important to make a task done. Okay, so these events starts from the source and ends with the customer. Okay, and who is the source? The supplier will be the source, and the person and the customer will be the end user, no, and it will end up to Mm. the customer, and from a customer only it gets starts. Okay, again the cycle continues. So there are some main hotspots which primarily with which primarily the supply chain redefined. Okay, so in that particular supply chain you have some macro modules. Those macro modules we can call it as a demand, supply, and the inventory. Likewise, okay, these are the major prospects. So these are the macro modules. That's why we are discussing more demand, supply, and the inventory. Got it? Then associated with them a various digital figure come to origin. Okay, where is digital figure? So like actuals quantity, adjusted actuals quantity, statistical forecast quantity, consensus demand, etc., associated with the demand planning. Okay, then are you okay? Are you getting this particular point? In the actuals Yes. quantity, whatever the data from the So historical. there is some main Hmm. hotspot in the sense. Hotspot means main points. Hotspot I have just utilized the terminology. It's nothing. Main points or the area, main area of the supply chain. Okay. We can call it as a hotspot. If you are getting detected something in the particular graph, then we are calling it as a hotspot. So I refer here it as a hotspot only. Okay, likewise.
as we discussed about the supply chain management, so in that particular thing, what are the hotspots we have? We have the demand, we have the supply and the inventory. Those are the hotspots with which Right. actually the supply chain is getting defined. Okay, likewise. Mm-hmm. Then in case of the supply domain of the sales and the operation modules, consensus demand, transportation receipt, stock on hand, projected stock, lead time, capacity usage, capacity utilization are some of the key figures which are specific to the supply domain. Okay, when you're going to supply planning, in that particular case, this particular will be the key figures. These are the important figures which we are making calculated, and we are storing those figures. These are some of the commonly used key figures. These are some of the commonly used key figures which can be used in the conventional pattern in a routine business. Okay, in our routine business we are using these key figures. So as similar with the inventories and the other associated business transaction activity, this transaction gives the stipulated figures in digital format. Okay, so Mm-hmm. whenever so those stipulated figures will be there in a digital format. The figure might be used as a raw input data, or it can be customized using the algebraic operations. Okay, like the addition, subtraction, division, multiplication, or by using a boolean operators to process the conditional data based on your target key figure. Okay, so you know, you are from the engineering background, no? No, I'm not from the engineering background, but I Yeah. done my BSc in computer science. Okay, nice. So you know these particular things. Okay. Right. Okay, yeah. So these are the operations. Then then how exactly the what are the conventional formula for the key figure, and how the key figure is getting calculated? Okay, so please Mm-hmm. be very attentive in this particular aspect. You have the target key figure. Okay, so what is the target key figure? It is equal to the input key figure A, and it's an additive product summation of input key figure A and input key figure B. Okay, or it might be a multiplication of input key figure A, input key figure B, or it might be a division of input key figure A or input key figure B. Got it? Mm-hmm. Likewise, so the critical point to be remembered while processing a key figure, planning level of the target key figure should be the final planning shall be the final planning level. Okay, जो प्लानिंग लेवल रहेगा टारगेट की फिगर का वो आपका फाइनल प्लानिंग लेवल रहेगा, और वो जो टारगेट प्लानिंग लेवल का जो लेवल रहेगा वो एक एडिटिव प्रोडक्ट रहेगा जो कि प्लानिंग लेवल ए का और प्लानिंग लेवल बी का दोनों मिल के जो रहेगा। ओके, वो भी मैं बताऊंगा आपको, बस आपको। Planning level in the sense हाँ, क्या? प्लानिंग लेवल मतलब प्लानिंग लेवल कौन मैंने से कल लेवल? आपको बताया था कि जैसे आपके पास में प्रोडक्ट मास्टर डेटा है, कस्टमर मास्टर डेटा है और लोकेशन मास्टर डेटा है। ओके, जब आप हाँ। तो अभी कैसा है, सपोज मैं डिमांड के लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिमांड के लिए मेरे पास में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? मेरे पास में प्रोडक्ट का मास्टर डेटा बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए लोकेशन का मास्टर डेटा बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास कस्टमर का मास्टर डेटा बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं रेवेन्यू के लिए भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए करेंसी का भी मास्टर डेटा बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे जब प्लानिंग लेवल, अब मेरा कौन से लेवल पे मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट लेवल पे करने जा रहा हूँ मैं उसमें कस्टमर लेवल पे भी करने जा रहा हूँ, और उसमें लोकेशन लेवल पे भी करने जा रहा हूँ। ओके, और करेंसी लेवल पे। ओके, तो कलेक्टिवली वो क्या हो गया, मंथ, प्रोड, लॉग, कस्ट, और पहले मैं पीरियोडिक लेवल पे देखूंगा। ठीक है, अब पीरियोडिक लेवल पे इसके लिए मैंने कहा कि मैं किस प्रकार की डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। क्या मैं स्ट्रेटेजिक लेवल की डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, टेक्टिकल लेवल की डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, या फिर डेली लेवल की, या फिर ऑपरेशनल लेवल की? तो लाइकवाइज मैं पीरियोडिक बकेट रखूँगा, उसके बाद में प्रोडक्ट, कस्टमर, लोकेशन और करेंसी। लाइकवाइज ये मेरा प्लानिंग लेवल रहेगा, और जो वो लेवल रहेगा राइट। उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो रहेंगे मेरे प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, लोकेशन आईडी और करेंसी आईडी। अब समझ में आया? करेक्ट। हम्म। हाँ, अभी बस समझो, हम जब ऑपरेशनली करेंगे ना तो अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम्म। अब यस। फिर यहाँ पे जो कॉमन लाइक। एरर्स अकाउंट होते हैं इन दिस पर्सपेक्ट, वॉट एवर मे बी द लॉजिकल ऑपरेशन, द कंसेप्ट ऑफ द प्लानिंग लेवल रिमेन्स द सेम। ठीक है, इसमें मैंने कहा है। ठीक है, कुछ भी आपका लॉजिकल हम्म। ऑपरेशन होगा, लेकिन प्लानिंग लेवल के लिए जो कंसेप्ट है वो एक ही रहेगा। प्लानिंग लेवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर आप टारगेट प्लानिंग लेवल रख रहे हो और इनपुट की फिगर में अगर वो प्लानिंग लेवल मिसिंग है, ओके,
तो एटलीस्ट वो वाला प्लानिंग हम्म, लेवल ए में अगर मिसिंग है तो बी में तो भी रहना चाहिए, दोनों में से किसी एक में रहना चाहिए, ताकि हम दोनों को जब फिगर आउट करेंगे तो दोनों का जो टोटल आउटपुट रहेगा वो हमारे टारगेट से मेल खाना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स में एल हम्म, एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर, हाँ, राइट हैंड साइड लाइकवाइज वाली हाँ, कंडीशन आनी चाहिए। यस। हाँ, ओके। सो in case of the exhaustive key figure logical operation, each input key figures needs to be defined at a certain calculative level. Okay? ये जो एग्जॉस्टिव की फिगर कैलकुलेशन है लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें जो इनपुट की फिगर रहेगा वो डिफाइन करेगा सर्टेन कैलकुलेटिव लेवल पे। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ परफॉर्म करेंगे तो कैलकुलेशन के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो कभी कभी उसमें हम्म, बोर्ड मास का प्रिंसिपल आपको मालूम है, वो बोर्ड मास का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है और कुछ नहीं। अब नेचर ऑफ द की फिगर डेटा, तो की फिगर्स माइट बी कैलकुलेटिव और स्टोर्ड। ये कैसे हो सकते हैं? या तो आप इसको ये कैलकुलेटिव पैटर्न में हो सकते हैं या तो स्टोर्ड हो सकते हैं। स्टोर्ड वाला कौन सा रहेगा? जो हमको सोर्स से मिल रहा है और जिसकी बुनियाद पे हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे हम अपनी हम्म, पहली स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है? तो हमारी पहली स्लाइड पे जाए तो स्टोर डेटा क्या है हमारे पास में? नंबर ऑफ कैंडी, ये स्टोर्ड। क्योंकि ये वन हम्म, है तो वन है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, वो डेटा मेरे पास में आया है भाई, एक ही वीक है वो, हम्म, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ कैंडी ये भी हमारे पास में स्टोर्ड ही रहेगा, ठीक है? अब उसकी वैल्यू है, उसकी एम आर पी 99 रुपीज़ है, अब वो थोड़ी मैं चेंज कर सकता हूँ। हम्म, लेकिन जो प्रॉफिट हम्म, इनकर्ड है वो कैलकुलेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ये जो स्टोर्ड की फिगर है 99 इंटू वन मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में ये 99 INR आया है। समझ में आया? हम्म, तो ये कैलकुलेटेड हो गया। हम्म, अब समझ में आया कुछ? कोई भी हाँ, हाँ, कैलकुलेटेड परफॉर्म करने के लिए आपको स्टोर्ड जरूरी है। तो आप जब कोई भी हम्म, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टोर्ड की फिगर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कोई हम्म, कैलकुलेटेड की फिगर क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, हम्म, कैलकुलेशन जब करने जाओगे तो आपको प्री डिफाइंड चाहिए ना कोई चीज़। सपोज कोई हम्म, एक मैथमेटिक्स में हम लोग देखिए, लेट एक्स इज इक्वल्स टू वन और टू हम लोग रखते हैं। ओके, वो कब रखते हैं? हम्म, जब एक्स की वैल्यू डिफाइंड होती है। तो हमें कोई तो भी प्री हम्म, डिफाइंड, तो एक्स की वैल्यू जो प्री डिफाइंड है वो स्टोर्ड वैल्यू हो गई। अब सपोज एक हम्म, स्लोप का जो फॉर्मूला आता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो उसमें हम्म, हमें स्लोप निकालना है, तो एम इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स, ऐसा आता है ना फॉर्मूला। तो अगर उसमें से हाँ, एम और वाई की अगर वैल्यू मुझे मालूम है तो एक्स में निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि एम और हाँ, वाई की हाँ, जो वैल्यू मालूम है वो स्टोर्ड की फिगर हो गया, और जो एक्स की वैल्यू निकलने हम्म, वाली है उसका मल्टीप्लिकेटिव सब्सट्रैक्टिव डिविजिव या फिर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन किया हुआ प्रोडक्ट आएगा आपके पास में। गॉट इट? लाइकवाइज। हाँ, हम्म, ओके, तो ये है। फिर वाइल हाँ, वाइल स्टोर्ड अराइज आउट ऑफ द रॉ इनपुट डेटा, जैसे मैंने कहा पहले, इट मे बी कैलकुलेटिव और नॉट, बट विल एक्ट एज अ रेफरेंस टू सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द फर्दर कैलकुलेशन एंड रिमेन स्टोर्ड, ठीक है? और वो स्टोर्ड रहेगा। एंड द कैलकुलेटिव डेटा इज अ वॉलेटाइल एंड प्रोवाइड्स एन सिंगल यूज यूटिलिटी, ठीक है? जो कैलकुलेटिव डेटा रहता है वो वॉलेटाइल रहता है, वो स्टोर्ड नहीं रहता, वो चेंज हो सकता है, लेकिन स्टोर डेटा हम्म, जैसा का वैसा रहता है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है, तो की फिगर्स आर द इटर्नल पार्ट ऑफ द ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओके, एंड दे प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर द accomplishment and the retrieval of any transaction data, okay, and it's an ideal practice which enables a user to process and audit the downstream and the upstream version of the business, ठीक है? हम्म, डाउनस्ट्रीम का हम्म, मतलब क्या होता है? अगर कस्टमर से कंपनी की तरफ में कोई डेटा जा रहा है, मतलब कस्टमर कोई डिमांड डाल रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है और वो कंपनी के पास में जा रहा है, और कंपनी फिर उसके लिए सप्लायर से कनेक्ट करती है, और सप्लायर उनको एक कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, और फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे फिर सप्लाई वप्लाई होके फिर वापस वो कस्टमर के पास में आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम किसे बोलते हैं? जब कंपनी से डेटा कस्टमर की तरफ जाता है ना, ठीक है? जब कंपनी वो हम्म, डेटा प्रोसेस करती है और कस्टमर को सेटिस्फाई करती है उसकी नीड से, तो उसे हम अपस्ट्रीम वर्जन कहते हैं। समझ में आ रहा है? right, ऐसा हम्म, होता है। तो बेस्ट टू रिजॉल्व एनी ट्रांजेक्शनल इशू इन द रियल टाइम बेसिस, ठीक है? तो मैम ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज के लिए, ठीक है? कल से मैं आपको एक्सेल शीट में लेके जाऊंगा और हम लोग वहाँ पे की फिगर कैलकुलेशन कल हम डायरेक्टली डिप्लॉय करेंगे प्लानिंग एरिया को, ठीक है? आज थोड़ा सा मुझे काम था इसलिए सर, फटाफ हाँ बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं सर। मुझे ये भी एक चीज़ जानना था। आप प्लीज़ एक बार ग्रुप में अभिमन्यु हम्म। को बता दीजिए कि मुझे मेरा एक्सेल में ऐड इन करने के लिए, क्योंकि मैंने आज अच्छा, सुबह बोला आपने था, उन्होंने बोला कि हाँ, क्या क्या बोला उसने?
तो मैंने उनको मॉर्निंग में बोला कि आपने बताया है कि मेरा एक्सेल ऐड इन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपसे बात करके वो टेक्निकल टीम मुझे कॉल करेगी। तो आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कल अच्छा मॉर्निंग में ठीक है ना, ठीक है ऐड ठीक है कर। ठीक है ठीक है। ये वाली स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में और एडिशनल हुँ, मेरे पास में डेटा है की फिगर का, वो भी डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप पहले उसको पढ़ लीजिए और कल से हम सीधा प्लानिंग एरिया डिप्लॉयमेंट पे काम करेंगे। और हम, क्योंकि ये तो बस इंट्रोडक्शन मुझे देना था कि होता क्या है, बाकी यू आर स्मार्ट इनफ टू ठीक गेट ऑल दोज डेटा। तो हम बस डिप्लॉय करेंगे कल से, ठीक है। फिर बाद में हमारा डिमांड, ठीक, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में आगे की कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए सर, ठीक ओके है। मैम, ओके ओके। सो आई एम गुड टू आप गो मैम। मैम मत बोलिए ना, मेरा नाम से बोलिए ना, आप मुझे मैम क्यों बता बोल रहे हैं? अरे मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनली मैं सबको ऐसे ही रिगार्ड करता हूँ, ठीक है। तो नहीं, आप ऐसे हम लोग इसके अलावा कहीं इधर रहें तो दैट विल बी ओके, लेकिन मैं टीचर स्टूडेंट का ऐसे ही होना चाहिए, मुझे तो नहीं ये ऐसे लगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम जस्ट अ ट्रेनर, ठीक है यहाँ पे। तो मैं ट्रेनर हूँ। अब मेरी तरफ से मैं आपको जो प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ लगता है लेकिन कंडीशन ये है कि मैं आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ये वाली स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और उसके साथ और एक डेटा और एक शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उसमें पढ़ लीजिए कैसे कैसे परफॉर्म है। करते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं देता हूँ आपको। तो ओके मैम, आज के ठीक, लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम कल। ओके, थैंक यू सो ओके ओके मैम।